I welcome all the participants for the last session of this FDP on IoT for agriculture application. So this last session is not related to the IoT for agriculture, but this is related to our day-to-day life and our health. So we invited Mrs. Neha Gachike for the conduction of this program. She is going to conduct a session for yoga for stress management. Mrs. Sneha Gachke is a certified yoga trainer and has vast, almost 35 years of experience in yoga. Uh, the thing that you will has to know that she is also a BTech in electronics, and she is continuously running these yoga practices in colleges and schools. She continuously creating awareness of importance of yoga in human life. She often talks about how yoga brings together physical and mental disciplines to achieve a peaceful body and mind, how it helps manage stress and anxiety and keeps you relaxing, how it helps in increasing flexibility, muscle strength, and body tone. Mrs. Neha Gachke has completed different certified courses from various institutes, just like from Yog Mandir Anand Bharati Ashram Nagpur to continuously attending the Art of Living courses from 2008. To his name, she has conducted almost more than 25 sessions for schools and colleges. Even for engineering and post-graduation students have attended the sessions. Even in one session, many doctors have attended her sessions. To his achievement, sorry, to her achievements, she has won different championships, just like state level yoga championships and national level championships at Calcutta, then Tamil Nadu, which are organized by Indian uh, Yoga Federation, and then different championships organized by Maharashtra Himalaya Yoga Olympiad Association. So I request her to, I would not move or much more introduction of her, because she would like to give some of the different yogas and asanas that will help you to release your stress that we have in our day-to-day life. I request Mrs. Neha Gachke ma'am to go further proceeding. Ma'am, please. Thank you very much, sir, for giving such a nice introduction. Uh, Good afternoon, everyone, and welcome to the way of healthy and happy life, the world of yoga. First of all, I'm very much thankful to our principal, Dr. S.D. Sumani sir, our HOD, Dr. Gavande sir, program coordinator, Dr. Wankhede sir, co-coordinator, Dr. Bangdia, Mr. Bangdia sir, for giving me such a wonderful opportunity to share my rich experience of doing yoga from last 35 years. I am Mrs. Neha Gatke. I am certified yoga trainer from Sri Sant Gajanan Maharaj College of Engineering, Shegaon. हमारे यहाँ श्री गजानन महाराज का एक बहुत ही बढ़िया टेम्पल है और उसके जो पोथी है उसमें लिखा हुआ है कि पहली संपत्ती शरीर, दुसरे ते घरदार, तीसरा तो प्रकार धनमानाचा. इसका मतलब है कि सबसे पहले हमें अपने हेल्थ की तरफ ध्यान देना चाहिए, सेकेंड फैमिली और थर्ड हमारी वेल्थ होनी चाहिए. पर आज की अपनी लाइफस्टाइल इतनी हेल्दी, लाइफस्टाइल इतनी बिजी है कि हम 50% हमारे प्रॉब्लम्स ये साइकोसोमेटिक हो रहे हैं. रिलेशनशिप क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, सेल्फ सेंटरनेस है, कंपटीशन है, करप्शन है, कंपैरिजन है. इस वजह से हम लोग हेल्दी और हैप्पी लाइफ जी नहीं पा रहे हैं. तो हमें आज इस वेबिनार में वही देखना है कि हम अपनी हेल्थ किस तरह से अच्छी तरह से संभाल सकते हैं. तो आज की कंटेंट्स है कि हेल्थ यानी क्या है. अपनी डेली लाइफ में
अपने हेल्थ पे किस तरह से इफेक्ट होते हैं, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ क्या है, और ये ठीक करने के लिए योगा एज ए गोल्डन की किस तरह से वर्क करते हैं, योगा के बेनिफिट्स क्या क्या है, कौन से टेक्निक से हम हेल्दी और हैप्पी लाइफ जी सकते हैं, और कंक्लूजन क्या है। योगा में एक बहुत ही बेहतरीन टेक्निक है जिसे ओंकार कहते हैं। तो हम अपनी वेबिनार की शुरुआत ओंकार से करते हैं। सेशन शुरू करने के पहले एक छोटी सी रियल स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एक मोटिवेशनल लेक्चर शुरू था। उसमें एक स्टूडेंट वो इतने पेशेंस से सुन रहा था और उसकी सक्सेसफुल कहानी सुनने के बाद उसने भी डिसाइड कर लिया कि मुझे भी एक बेहतरीन इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है, और उसने तभी से नॉलेज गेन करना शुरू किया। जब उसकी एजुकेशन कंप्लीट हुआ तो उसने अपनी इंडस्ट्री खोल ली, और ऐसा होता गया कि उसको सक्सेस मिलता गया, वो खुश होता गया, और जैसे जैसे आगे बढ़ता गया तो कंपटीशन बढ़ती गई, तो काम बढ़ता गया, पर वो दिन आ ही गया कि उसको सक्सेस मिल ही गया और उसका बेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट करके नाम डिक्लेयर हो गया। तो जर्नलिस्ट उसके घर पे आए इंटरव्यू लेने के लिए। उन्होंने पूछा, सर आप जब स्टूडेंट थे तो आपने एक सपना देखा था और वो आज सपना पूरा हो गया है, तो आप सबसे खुशनसीब होंगे। तो इंडस्ट्रियलिस्ट ने क्या कहा होगा, वो खुश होंगे। उन्होंने कहा कि आज मैं जो आपको बातें बता रहा हूँ, आप सबको वो बातें सब पूरी पब्लिक तक वो बात पहुँचाना चाहिए, क्योंकि जब मैंने काम शुरू किया तो मैं बहुत ही एंजॉय कर रहा था, हर स्टेप सक्सेसफुली आगे बढ़ रहा था। तो उसमें स्ट्रेस आना शुरू हो गया, धीरे धीरे मेरी एसिडिटी बढ़ने लग गई। तो मैंने क्या किया, पिल्स लेना शुरू कर दिया, एसिडिटी सप्रेस की और काम शुरू ही था। तो आगे हाइपर एसिडिटी में वो एसिडिटी कन्वर्ट हो गई और मुझे डॉक्टर ने बता दिया कि आप तीखा मिर्च मसाले वाला खा ही नहीं सकते। फिर भी काम तो शुरू ही था, स्ट्रेस तो आ ही रहा था। कितने बार ऐसी समस्या आती थी कि आप फ्लाइट करें या फाइट करें, मैं कोप अप नहीं कर पा रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। ऐसे सिचुएशन में क्या हुआ कि मेरा स्ट्रेस बढ़ता गया और मुझे बीपी की तकलीफ शुरू हो गई। तो अब नमक भी बंद हो गया। धीरे धीरे कंटिन्यूस स्ट्रेस से फाइट करते करते मेरे ब्लड में शुगर परसेंटेज बढ़ता गया, ग्लूकोज परसेंटेज बढ़ता गया, और मैं बीपी का भी डायबिटीज़ का भी शिकार हो गया। तो मुझे अब मीठा भी खाना मेरा बंद हो गया। उसके बाद कुछ दिनों पहले ही मुझे हार्ट अटैक आया था। तब कहीं जाके मुझे थोड़ा वक्त मिला कि मैं अपने बारे में सोचूं। मेरे पास अब पैसा है, प्रतिष्ठा है, पावर है, हर चीज़ मेरे पास है, पर मेरे पास मेरी सेहत नहीं है। आज मैं ना मीठा खा सकता हूँ, ना तीखा खा सकता हूँ, या ना नमक खा सकता हूँ। ना मैंने जब मुझे सबको ज़रूरत थी, मेरे फैमिली को भी मैंने वक्त नहीं दिया, तो उन्होंने भी मेरे बगैर जीना सीख लिया है। मेरे पास स्लीप वेल की गद्दी है, पर गोली लेके बगैर मैं सो भी नहीं सकता। तो क्या हम ऐसी लाइफ जीना चाहिए हमने ऐसी लाइफ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि वेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, बट हेल्थ इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। और अभी जब हार्ट अटैक हुआ था तो मैंने अब्दुल कलाम का एक बुक पढ़ा। उसमें एक बहुत ही बेहतरीन सेंटेंस था। वो कहते थे कि जिंदगी बहुत ही बेहतरीन है, सिर्फ आपको जीना आना चाहिए। आपने हर पल में जीना सीखना है। तो अब हमें हेल्थ अगर अच्छी रखनी है तो हेल्थ यानी क्या, ये भी हमें पता होना जरूरी है। क्या सिर्फ अब्सेंस ऑफ डिसीज यानी हेल्थ होती है? बिल्कुल ही नहीं। फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली और स्पिरिचुअली जब हम वेल बीइंग रहेंगे तभी हम बैलेंस लाइफ जी सकते हैं। तो फिजिकल हेल्थ यानी क्या, ये भी हमें पता होना चाहिए। हम रोज डेली रूटीन में जो भी काम करते हैं वो स्ट्रेंथली हमने करने चाहिए। हमारे शरीर में कोई भी रोग ना हो, या
हमारे सभी बॉडी ऑर्गन, हमारे सभी फंक्शन अच्छी तरह से काम करें, उसे फिजिकल हेल्थ कहते हैं। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि गुड फिजिकल हेल्थ इक्वल टू गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो फिजिकल हेल्थ की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं अभी हमने सुना ही कि एसिडिटी, हेडेक, बीपी, ओबेसिटी, डायबिटीज, स्लीप डिसऑर्डर, हार्ट अटैक, ये सभी फिजिकल हेल्थ इश्यू हैं। पर इसका मेन रीज़न तो मेंटल डिसऑर्डर से होता है। अब हम देखेंगे कि ये किन 3 पिलर पे हम लोग अपनी फिजिकल हेल्थ स्ट्रांग रख सकते हैं। तो सबसे पहला पिलर है आसन। आसन हमारे शरीर के सभी सिस्टम को सुचारू रूप से काम करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, ग्लैंड का सिक्रेशन है, ब्लड सर्कुलेशन है, ये सभी आसन की वजह से अच्छे से काम करता है और हमारी इम्यूनिटी पावर बूस्ट होती है। दूसरा पिलर है नींद। 6 to 8 आवर्स नींद भी हमें बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम आजकल देखो स्क्रीन के सामने रहते रहते बच्चे रात रात तक सोते नहीं और फिर उनको कंसंट्रेशन और फोकस की प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है। तो ऐसा हो सकता है कि कभी एग्ज़ाम है, घर में कोई प्रोग्राम है या डेडलाइंस है, तो हमें कम समय मिले सोने के लिए। पर योगा में उसी के लिए भी सॉल्यूशन है। योगा में ऐसा योग निद्रा है, एक ऐसा टेक्निक है कि वो 8 घंटे की नींद सिर्फ आधे घंटे में निकाल सकता है। तो नींद भी बहुत ही ज़रूरी है। और तीसरा जो पिलर है वो है बैलेंस डाइट। डाइट बहुत ही अच्छा, जैसा इनपुट वैसे आउटपुट। अगर हमें हेल्दी रहना है तो फास्ट फूड ना लेते हुए रीजनल, ओरिजिनल और सीजनल फूड लेना चाहिए। अगर हमारा पेट आप समझो एक रोटी है, तो हमें खाना सिर्फ आधा पेट खाना है, 1/4 पानी के लिए और 1/4 हमें हवा के लिए खाली रखना है। डाइट लेते वक्त भी महाराष्ट्रियन खाना कहते हैं सबसे अच्छा है। उसमें सलाद रहता है, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, मट्ठा, ये सब मीठा, सब कुछ बैलेंस ऐसी इंडियन ये है कि इसलिए कहते हैं कि महाराष्ट्रियन खाना बहुत ही बेहतरीन है। खाते वक्त पानी ना पिए तो बहुत ही अच्छा, डाइजेशन अच्छा होता है। और रात का खाना 7 बजे के पहले खाने से बहुत ही अच्छी डाइजेशन होती है। इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हमें होती नहीं। अब हम देखेंगे कि मेंटल हेल्थ क्या है। मेंटल हेल्थ मतलब अपने जीवन में ऐसी सिचुएशन कभी कभी आती है कि हम वो टैकल नहीं कर पाते। हमारा एक्सपेक्टेशन और हमारी रियलिटी, इसमें हम इसमें की जो गैप है वो हम फिल नहीं कर पाते और हम स्ट्रेसफुल हो जाते हैं और निगेटिव थिंकिंग आने लगते हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है और इसका अपनी ग्लैंड सिक्रीशन पे, ब्लड सर्कुलेशन पे इफेक्ट होने लगता है। और आज तो मैं कहती हूँ कि 50% प्रॉब्लम से साइकोसोमेटिक है, हमारी मेंटल हेल्थ की वजह से है। आपने देखा होगा आजकल एंजाइटी, डिप्रेशन के प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ रहे हैं, मूड स्विंग भी बहुत होते हैं। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी मेंटल हेल्थ की वजह से ही होते हैं। अगर मन शांत ना रहा, हम अगर हर सिचुएशन पे रिस्पॉन्ड करने के बगैर रिएक्ट करने लगे तो प्रॉपर डिसीजन नहीं होता और फिर वो स्ट्रेस आता है और उस वजह से हमारे बॉडी में डिसऑर्डर क्रिएट होते हैं, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर, ये भी सभी मेंटल हेल्थ के इश्यू हैं। तब हमें स्ट्रेस अगर मेजर करना है तो हम किस तरह से मैनेज करेंगे। तो इसके लिए हमें हमेशा 3 सर्कल याद रखना है। हमारा इनर सर्कल, सर्कल ऑफ इम्पैक्ट और आउटर सर्कल। इनर सर्कल मतलब खुद पे कंट्रोल करना, आउटर मतलब कि जिस पे हमारा कंट्रोल ही नहीं होता, और सर्कल ऑफ इम्पैक्ट मतलब ऐसा कि हम इन्फ्लुएंस करके देखें, अगर कोई चेंज हो गया तो उसे चेंज करने के लिए मदद करें या फिर छोड़ दे। तो सबसे पहले देखो कोई अगर सिचुएशन आई, मैं एक छोटा सा एग्जांपल, रियल एग्जांपल देती हूँ। एक बैंक में एक पर्सन था, वो बहुत सिंसियरली, बहुत ही डेडिकेटली काम करता था,
पर एक दिन ऐसा हुआ कि किसी और ने फ्रॉड किया और उस पर वो आ गया, तो उसको निकाल दिया बैंक से। तो उसने पहले तो उसने थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, पर उसने बोला नहीं, मैं डिस्टर्ब होऊंगा तो मैं प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाऊंगा। तो वो गया अपने मैनेजर के पास। उन्होंने अपनी पूरी बात उनको एक बार दो बार कहने की कोशिश की, पर उन्होंने वो बात सुनी ही नहीं। तो उसे पता चला कि इनको इन्फ्लुएंस करके कोई फ़ायदा नहीं। और आउटर सर्कल मतलब अब उसको पता ही चल गया कि मैं इस पे मेरा कंट्रोल नहीं है। तो उसने क्या सोचा, उसने गुस्सा नहीं किया, वो फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ। उसने डिसीजन लिया कि हाँ, मेरा बैंक में लगने से पहले सपना था कि मुझे आईएएस ऑफिसर होना है। उसने जी जान से अपने पढ़ाई में समय बिताना शुरू कर दिया और वो इतनी डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम पहले अटेम्प्ट में ही पास हो गया और आज वो एक कलेक्टर है। तो अगर हम लोगों ने रिएक्ट करने के बगैर रिस्पॉन्ड किया, प्रॉपर डिसीजन लिया, तो हम स्ट्रेस मैनेज कर सकते हैं। देखो आप, एक डायमंड और एक चारकोल दोनों ही कार्बन से बनते हैं, पर स्ट्रेस से डायमंड किस तरह से उभर के आता है और चारकोल किस तरह से रहता है, ये हम देख सकते हैं। इसलिए हमेशा याद रखना है, एक्सेप्ट इट, चेंज इट और लीव इट। तो ऐसे योगा में कौन कौन से टूल है कि हम लोग अपनी हेल्थ अच्छी रख सकते हैं? तो वो है प्राणायाम, मेडिटेशन, रिलैक्सेशन टेक्निक। हमारे हॉबी के साथ हम जी सकते हैं, हमारे फैमिली और फ्रेंड के साथ हम अच्छा वक्त बिता सकते हैं ताकि हम हेल्दी रह सकें। अब हम जाते हैं योगा की तरफ। आपको पता है कि आज इतना स्ट्रेस है, इतने काम में हम लोग बिजी हैं, साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं। वैसे तो आज कोरोना का पीरियड है, सबके मन में थोड़ा डर तो ज़रूर है। अगर ऐसे समय में हमें अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करनी है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम ऐसे टाइम पे अगर हमें योगा जैसी गोल्डन की अगर मिल गई, तो हम अनलॉक द डोर ऑफ हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। तो योगा ये शब्द युज धातु से तैयार होता है। युज यानी जोड़ना, एडिशन करना। तो एनर्जी, स्ट्रेंथ एंड ब्यूटी, एडिशन ऑफ एनर्जी, स्ट्रेंथ एंड ब्यूटी टू द बॉडी एंड माइंड, बॉडी माइंड एंड सोल, इसी को योगा कहते हैं। वैसे तो कहते हैं कि नरेंद्र सिंह विवेकानंद का जो जर्नी है वही योगा है। आज आप देख रहे हो, एक चाय वाला भी प्राइम मिनिस्टर बनता है, वो भी एक योगा का ही जर्नी है। तो योगा हमें क्या देता है? फिजिकल फिटनेस, मेंटल अलर्टनेस और इमोशनली बैलेंस लाइफ। योगा ये कोई अभी का टेक्निक नहीं है। योगा ये बहुत ही पुराना टेक्निक है। पतंजलि ऋषि ने तो अष्टांग योग करके एक ग्रंथ लिखा है। वो कहते हैं योग चित्त वृत्ति निरोधः, अपने वृत्तियों पे कंट्रोल करना ही योग है। भगवत गीता में ही वह कहा जाता है, योग कर्मसु कौशलम, मतलब कुशलता से अपना कर्म करना ही योग होता है। अब ये बताने का रीज़न ये है कि योगा एक वर्ल्ड एंशंट साइंस है, फिर भी मॉडर्न रिसर्च इसे कंफर्म करते हैं। मेरी एक दोस्त है, वो अभी ओंकार पर पीएचडी कर रही है और पता चल रहा है कि किस तरह से वो ग्राफ बताते हैं कि हम कितने स्टेबल, रिलैक्स फील कर सकते हैं योगा करने से। तो योगा के बेनिफिट क्या क्या है, ये भी हमें पता होना चाहिए, तो हम योगा की तरफ मुड़ेंगे। योगा हमारा स्ट्रेस रिड्यूस करता है, हमारी एनर्जी बढ़ाता है, रिलैक्सेशन बढ़ाता है, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है। देखो कैसे होता है, हम अगर चलते चलते हमें चोट आ गई तो हमारी उंगली टेढ़ी हो जाती है, तो हम तुरंत डॉक्टर के पास नहीं भागते, हम क्या करते हैं, उंगली को ऊपर नीचे करते हैं, तो वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है और हमारी उंगली ठीक हो जाती है। वैसे ही हमारे जॉइंट्स जूसी होते हैं, हमारी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। देखो आजकल मैक्सिमम लेडीज जो पूछ रही है, उनको नी पेन बहुत ही हो रहा है। ये जॉइंट्स हमें किस लिए दिए गए हैं कि हम उसे फोल्ड करें, पर आजकल चेयर पर से बेड पर, बेड पर से चेयर पर
हम लोग बैठते हैं तो घुटने फोल्ड ही नहीं किए जाते हैं, तो वो अकड़ जाते हैं। जैसे कि हमारे घर में अगर नल है, हमने 6 महीने उसको यूज ही नहीं किया तो पूरा टाइट हो जाता है, और ज़बरदस्ती की तो कभी कभी टूट भी जाता है। अगर हम लोगों ने ये जॉइंट्स का यूज़ नहीं किया तो वो भी प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। हमारी फ्लेक्सिबिलिटी भी योगा से बढ़ती है। देखो अपने हाथ का ही एग्जांपल ले लो। हम हमारे राइट हैंड से हमेशा काम करते हैं, लिखते हैं, चीज़ें उठाते हैं, जल्दी जल्दी काम करते हैं, पर लेफ्ट हैंड इतना यूज़ नहीं करते। तो योगा करने से जैसा हमारा राइट हैंड है, इसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा है, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है, पर लेफ्ट हैंड में उतनी नहीं है। अगर हम योगासन रेगुलर करेंगे तो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी। वैसे योगा से, प्राणायाम से, मेडिटेशन से हमारा कंसंट्रेशन, मेमोरी पावर, इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, और कितने सारे ऐसे क्रॉनिक डिसीजेस हैं वो रिमूव होते हैं। कुछ दिनों पहले एक लेडीज मेरे क्लास में आती थी। उसे थायराइड का बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम था। उसमें उसके पैरों में स्वेलिंग था, खाना हजम नहीं हो रहा था, नींद नहीं आ रही थी। तो वो बोली, मैडम 6 महीने से मैं गोलियां खा रही हूँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा। तो मैंने बोला, योगा में इसके लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम और कुछ आसन है, पर आपको वो रेगुलर करने पड़ेंगे। और उसने सिंसियरली वो करना शुरू किया। 6 महीने में ही उसे पता चल गया कि स्वेलिंग कम हो रहा है, नींद अच्छी से आने लगी, डाइजेशन अच्छा हो गया। और उसने जब थायराइड चेक किया तो उसका थायराइड का प्रॉब्लम पूरा चला गया था। तो योगा के कौन कौन से ऐसे टेक्निक हैं कि जिससे हम लोग स्ट्रेस फ्री और हेल्दी रह सकते हैं? तो सूर्य नमस्कार, आसन, प्राणायाम और मेडिटेशन, जो कि हम रेगुलर क्लासेस में बच्चों को सिखाते हैं और उनको फोकस कैसे रहना ये बताते हैं। इस सूर्य नमस्कार आसन करके भी कर सकते हैं और फिजिकल एक्सरसाइज भी करके भी किए जा सकते हैं। तो जब हम आसन करके सूर्य नमस्कार करते हैं तब वो बहुत ही धीरे धीरे किया जाता है, और हम अब उसका डेमोस्ट्रेशन देखेंगे। ये योगा की एक बहुत बेहतरीन टेक्निक है जिससे कि हम लोग हेल्दी हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। तो ओंकार सूर्य नमस्कार में 12 आसनों की श्रृंखला होती है। वो 12 आसनों में फ्रंट बेंडिंग, बैक बेंडिंग सभी हो जाता है, तो हम उससे फ्लेक्सिबल भी हो जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, ब्लड प्योरिफिकेशन होता है, सभी सिस्टम अच्छी तरह से वर्क करती है। डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम सभी सुचारू रूप से काम करने लगती है। हर एक ग्लैंड का सिक्रेशन अच्छा होता है, इसीलिए
रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो पूरे रिमूव हो जाते हैं। और अगर हम लोगों ने समंत्र सूर्य नमस्कार किया तो हमें, और सांस की तरफ ध्यान देके अगर सूर्य नमस्कार किया तो उसमें प्राणायाम भी हो जाता है और हमारे मन में भी स्थिरता आती है। तो ऐसा कहते हैं कि सूर्य नमस्कार कीप अस फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट और इमोशनली बैलेंस। तो कम से कम 3 सूर्य नमस्कार तो रोज करने ही चाहिए। अगर आपको वेट को घटाना है तो आप 21, 41 ऐसे कितने भी उसको बढ़ा सकते हैं ताकि आपका वेट कम हो जाए। तो हम लोग अभी सूर्य नमस्कार किस तरह से करते हैं उसका डेमो समंत्र सूर्य नमस्कार करेंगे। ये उत्थीत नमस्कारासन है। अभी हम मंत्रोच्चार करेंगे और बाद में सेकंड स्टेप करेंगे। ओम राम मित्राय सेकंड पोजीशन ऊर्ध्व नमस्कारासन। हस्तपादासन। दक्षिण पाद प्रसरणासन। द्विपाद प्रसरणासन। साष्टांग प्रणिपातासन। भुजंगासन। भूधरासन। दक्षिण पाद संकोचनासन। हस्तपादासन। ऊर्ध्व नमस्कारासन। उत्थीत नमस्कारासन। पूर्व स्थिति। इस तरह से हम सूर्य नमस्कार कर सकते हैं और हैप्पी हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। थैंक यू। तो हम अब देखेंगे सूर्य नमस्कार से हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। अब हम देखेंगे कि आसन के बेनिफिट क्या है, आसन किस तरह से किया जाता है। तो आसन की डेफिनेशन है स्थिरम सुखम आसनम, मतलब शरीर की ऐसी स्थिति जो कि स्थिरावह भी है और सुखावह भी है। आसन करने से हमारे बॉडी की पूरी इम्प्यूरिटीज रिमूव हो जाती है और हम हेल्दी और हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। आसनों के 3 भाग होते हैं, गति, स्थिरता और शरीर मन का समन्वय। जब भी हम आसन करते हैं बहुत ही धीरे धीरे गति से करना है, पूर्ण स्थिति में स्थिर रहना है और जब कर रहे हैं तो अपना ध्यान भी उसी में होना चाहिए।
उसका एक बहुत ही फिक्स रूल है कि यथाशक्ति निरंतरम, कभी भी कंपटीशन करके हमें आसन करने नहीं चाहिए। जो भी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है इस हिसाब से हम लोग आसन कर सकते हैं। आसन के 3 भाग होते हैं, जैसे कि रिलैक्सेटिव, मेडिटेटिव और कल्चरल। तो रिलैक्सेटिव आसनों में हम पूरा थकान निकाल सकते हैं, बॉडी और माइंड दोनों रिलैक्स हो जाते हैं। फिजिकल आसना जो होते हैं जैसे भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, वक्रासन, उसमें हमारी पूरी सिस्टम अच्छी हो जाती है और हम निरोगी हो पाते हैं, डिसीज फ्री रह सकते हैं। तीसरे है कि मेडिटेटिव आसना, जो है कि वज्रासन, अपना स्वस्तिकासन, पद्मासन, जिसमें हम फोकस कर सकते हैं, हमारा कंसंट्रेशन और मेमोरी पावर बढ़ता है। सिर्फ कुछ बातें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि आसन हमेशा खाली पेट किए जाते हैं और फैन के नीचे बैठ के नहीं करना है, गद्दी पे बैठ के नहीं करना है। खुली हवा में किए तो बहुत ही बेहतरीन। और कोई बहुत बड़ा अगर आपका ऑपरेशन हुआ है तो 6 महीने तक कोई आसन नहीं करना चाहिए। आपके योगाचार्य को पूछ के आप आसन कर सकते हैं। सेकंड टेक्निक है प्राणायाम। तो प्राणायाम यानी क्या होता है कि अपने जो ब्रीदिंग पे है वो कंट्रोल लाना ही प्राणायाम है। एक्चुअली आपको ये पता होगा कि जैसे जैसे हमारा फीलिंग चेंज होते हैं वैसे वैसे हमारे श्वास की गति भी चेंज होती है। तो एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आप सभी को क्रिकेट पसंद है। हम लोग जब क्रिकेट देखते हैं, अगर वनडे मैच शुरू है तो हम एकदम से रिलैक्स बैठे हुए हैं और ऐसी सिचुएशन आती है कि लास्ट में एक ही बॉल बचा है, सचिन तेंदुलकर खेल रहा है और आगे से बॉलर दौड़ के आ रहा है, तो हम लोग एकदम से ठीक से बैठ जाते हैं, एकदम सांस रुक जाती है, क्या होगा, जीतेंगे या हारेंगे। ऐसे में अगर तेंदुलकर ने छक्का मार दिया तो एकदम हमारी ब्रीदिंग बढ़ जाती है, हम जोर से चिल्लाते हैं वाह करके, हमारी बॉडी एक्सपांड होती है। पर वही बॉल अगर कैच हो गया तो हमारा ब्रीदिंग एकदम डीप हो जाता है। मतलब जैसे सिचुएशन चेंज होती है वैसे हमारा ब्रीदिंग चेंज होता है और उस वजह से हमारे बॉडी पे इफेक्ट होते हैं। अगर हम लोगों ने प्राणायाम सीख लिया तो हम लोग मन में स्थिरता ला सकते हैं। प्राणायाम करने से हमारा लाइफ स्पैन भी बढ़ता है। आपको पता होगा कुत्ता कैसे सांस लेता है, बहुत ही फास्ट ब्रीदिंग करता है तो वो कितना जीता है, सिर्फ 18 से 20 साल उसकी उम्र होती है। हम लोग 1 मिनट में 15 सांस लेते हैं तो हमारी आयु 80 to 100 ईयर होती है। हमसे भी डीप ब्रीदिंग कौन करता है, हाथी, वो 100 से 200 साल तक जीता है। पर आपको पता है कछुआ 1 मिनट में सिर्फ 3 सांस लेता है तो उसकी आयु कितनी है, वो 200 से 400 साल तक जीता है। अगर आपने देखा, अगर हमने प्राणायाम किया तो मन में भी स्थिरता आती है और हमारा लाइफ स्पैन भी बढ़ता है और स्पिरिचुअल पावर तो बढ़ती है। ब्रेन को हमें स्टिमुलेशन मिलता है तो कंसंट्रेशन पावर, मेमोरी पावर बढ़ती है, हमें हमेशा फ्रेश लगता है, इनर पीस महसूस होता है। आज है मेडिटेशन। मेडिटेशन ये एक माइंड एक्सरसाइज है जिससे कि हम लोग एकदम रिलैक्स, फोकस और स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं। इसमें ओंकार करके एक बहुत बेहतरीन टेक्निक है। डॉक्टर अर्निश करके अमेरिका के एक डॉक्टर अपने इंडिया में आए थे और वो योग विद्याधाम नासिक में डॉक्टर मंडलिक सर से मिले और उन्होंने कहा कि मेरा ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि वहाँ के 60% लोग एंग्जाइटी, डिप्रेशन और बीपी, हार्ट अटैक के शिकार हो रहे हैं। तो आपकी योगा में ऐसा कोई टेक्निक है जिससे कि हम ये सब पूरी तरह से ठीक कर सकें? तो डॉक्टर अनिश ने कहा कि आप कुछ दिन यहाँ पे रुको और योगा के इफेक्ट देखो। डॉक्टर अनिश वहाँ पे रुक गए और वो रियली देख रहे थे कि योगा की वजह से कितनी चेंजेस हर पेशेंट के अंदर आ रहे थे। कुछ दिनों बाद एक पेशेंट वहाँ पे आया, उसका बीपी इतना शूट हो चुका था, ना वो प्राणायाम कर पा रहा था, वो ना आसन कर पा रहा था। तो डॉक्टर मंडलिक ने क्या किया, उसको बेड पे लेटा दिया और एक सीढ़ी, ओंकार जप की एक सीढ़ी वहाँ पे चला दी
और डॉक्टर अनिश को बोला कि 2 घंटे के बाद आपको इसका बीपी चेक करना है। जब 2 घंटे के बाद उसका बीपी चेक किया तो एकदम से वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था। तो इसलिए कहते हैं कि ओंकार, समस्या आने जवाब एक, ओंकार जप। ओंकार में 3 शब्द होते हैं, अ, उ और म। अकार, देखो हम जब अकार कहते हैं तो हमारा मुंह खुलता है, तो उसके वाइब्रेशन हमारे नाभि के पास होते हैं और नाभि के बाजू का पूरा पोर्शन क्लियर हो जाता है। जब हम उकार कहते हैं तो वो नाभि से लेके गले तक के प्रॉब्लम्स रिमूव करते हैं। आप हाथ रख के देखेंगे अपने हार्ट पे तो हमें पता चलेगा कि वहाँ पे वाइब्रेशन क्रिएट हो रहे हैं और हमारे लंग्स के, हार्ट के, थायराइड के, टॉन्सिल्स के सभी प्रॉब्लम रिमूव हो जाते हैं। और अगर हमें कंसंट्रेशन और मेमोरी पावर बढ़ाना है तो हम मकार कहेंगे। देखो मकार कहते तो हमारा मुंह पूरा बंद हो जाता है, तो वो वाइब्रेशन पूरे ब्रेन में क्रिएट होते हैं, ब्रेन को स्टिमुलेशन मिलता है और अपनी कंसंट्रेशन, मेमोरी पावर उससे बढ़ती है। एंजाइटी, डिप्रेशन तो दूर दूर भाग जाता है। तो जब हम ओंकार जप करेंगे तो हमें सिर्फ अपने ब्रीदिंग पे ध्यान देना है। उसका भी एक प्रोपोर्शन होता है 3:2:5, मतलब 3 सेकेंड अकार कहना है, 2 सेकेंड उकार और 5 सेकेंड मकार। पर अगर हमको पेट के प्रॉब्लम्स है तो हम अकार लंबा खींच सकते हैं। अगर हमको टॉन्सिल और थायराइड का प्रॉब्लम है तो हम उकार लंबा खींचेंगे। और अगर हमें एंजाइटी, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, टेंशन है तो हम लोग मकार लंबा खींचेंगे, जिससे कि हमारे प्रॉब्लम दूर हो सके। तो एक बार मिस्टर रतन टाटा अपने स्टूडेंट्स को, अपने स्टाफ को बता रहे थे कि आजकल मैक्सिमम सब लोग अपनी एकेडमिक और करियर गोल सेट कर रहे हैं, पर अगर आपको बैलेंस लाइफ जीना है तो आपको सिर्फ एकेडमिक और करियरिस्टिक गोल सेट नहीं करना है, उसके साथ साथ अपनी हेल्थ, अपने रिलेशंस और अपनी फैमिली और हैप्पीनेस, मतलब पीस ऑफ माइंड की तरफ भी ध्यान देना जरूरी है। तो उन्होंने कहा कि आपको ड्राइविंग बहुत पसंद है, आपने नई नई कार लाई है, पर उसी दिन आपको अगर सीवियर बैक एक है तो क्या आप ड्राइविंग एंजॉय कर सकते हैं? बिल्कुल ही नहीं। वो कहते हैं आपके पास पैसा है, पावर है, प्रतिष्ठा है, जो आपके पास जो चाहते हैं वो सब है आपके पास, पर अगर आपके पास समय ही नहीं है वो एंजॉय करने के लिए तो उस पैसों का क्या फायदा? इसलिए जीना ये एक प्रॉब्लम्स, ये जिंदगी है, पर फाइंडिंग सॉल्यूशन यही अपना आर्ट ऑफ लिविंग है। तो हम योगा की तरफ किस तरह से बढ़ सकते हैं, तो उसकी एक सिंप्लीफाइड व्यू है। गेट अप अर्ली, क्लीन अप योर बॉडी बाय ड्रिंकिंग वार्म वाटर। गर्म पानी पी के हमें सुबह सुबह बॉडी को क्लीन करना है। उसके बाद थोड़ी सी अकड़न जो शरीर में होती है तो सूर्य नमस्कार, जॉगिंग या हम सूक्ष्म व्यायाम करके हमारी हेल्थ अच्छी कर सकते हैं, मतलब जॉइंट जूसी बना सकते हैं। चौथी स्टेप है कि स्ट्रेच अप योर बॉडी बाय आसना, जिससे कि हमारी सभी सिस्टम अच्छी होंगी। फ्रेश अप बाय प्राणायामा, जिससे मन में स्थिरता आएगी। और जॉय अप विथ मेडिटेशन। उसके साथ 2 बातें और भी इम्पोर्टेंट है कि टेक प्रॉपर बैलेंस डाइट और प्रॉपर रेस्ट। तो अब हम देखते हैं कि आज तो कोविड का पीरियड है, सबको लॉकडाउन की वजह से घर पे रहना पड़ रहा है, बच्चों से लेके बूढ़े तक सब स्क्रीन के सामने हैं। तो जो भी आज प्रॉब्लम पूछने आ रहा है, किसी को सिर दर्द है, किसी को आँखों की प्रॉब्लम है, किसी के कान में हेडफोन लगाने की वजह से दर्द हो रहा है, किसी के गले में अकड़न है, किसी को बैक एक हो रहा है, एक जगह के बैठने से वजह से कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन हो रहा है। तो ये सब प्रॉब्लम्स हम यहाँ बैठ के किस तरह से उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, वो छोटे छोटे एक्सरसाइज करके हम देखेंगे। तो जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं उसको सूक्ष्म व्यायाम कहते हैं। तो हम सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम के थोड़े से प्रैक्टिकल्स करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि अगर हमें सिर दर्द है तो क्या करना है। सब लोग देख के करेंगे।
अपने सिर पे हाथ रखना है और धीरे धीरे उसको मसाज करनी है। उसके बाद में राइट हैंड से सिर को दबाना है, सिर लेफ्ट साइड पे और हाथ को राइट साइड पे प्रेस करना है। फिर लेफ्ट साइड से करना है 1 2 3। उसके बाद में हम लोग पीछे से करेंगे 1 2 3। फिर आगे से करना है 1 2 3। इसके बाद हम देखते हैं कि आँखों के किस तरह से एक्सरसाइज किए जाते हैं। आँखों में अगर लाल हो रहा है, पानी आ रहा है, दर्द हो रहा है, तो हम आई रोटेशन करेंगे। रोटेट करते वक्त लेफ्ट अप राइट डाउन 3 बार करना है, लेफ्ट टू राइट, फिर 3 बार राइट टू लेफ्ट रोटेट करना है आँखों को। फिर धीरे से दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर रब करके थोड़ा सा रिलैक्स करना है आँखों को। अभी 3-3 बार हम लोग कर रहे हैं, पर आप घर में 5 to 10 टाइम्स भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। आज और एक प्रॉब्लम है जो कि हमारे कानों में दर्द हो रहा है, तो हमें क्या करना है, मुंह में हवा भर लेनी है, नाक बंद करना है और एयर प्रेशर कानों की तरफ देना है। 3 बार करेंगे। इससे आपके कान की मसल्स अच्छी हो जाएंगी, दर्द कम हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि नेक रोटेशन किस तरह से किए जाते हैं। गर्दन को हिलाना है, फ्रंट बेंडिंग करो, राइट बैक लेफ्ट फ्रंट 3 बार करना है। जब पीछे जाते हो तो सांस भरनी है, आगे आते हो तो सांस छोड़नी है। जब हम स्क्रीन के सामने हैं तो धीरे धीरे बीच बीच में अगर ये एक्सरसाइज कर ली तो आपकी गर्दन में दर्द नहीं होगा। हमेशा योगा में रिवर्स एक्सरसाइज भी किए जाते हैं। 2 3। अब हम उंगलियों के एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि माउस पे या कीबोर्ड पे हाथ रख रख के उंगलियां भी दर्द करती है, रिस्ट भी दर्द करता है। तो देखते हैं किस तरह से एक्सरसाइज कर सकते हैं। देखो, हमें उंगलियां स्ट्रेच करनी है, रिलैक्स करनी है, स्ट्रेच करनी है, रिलैक्स करनी है, स्ट्रेच करनी है, रिलैक्स करनी है। इसके बाद हमें रिस्ट जॉइंट के लिए एक्सरसाइज करना है 1 2 3। फिर रिवर्स 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। इसके बाद में हम एल्बो जॉइंट के लिए करेंगे। हर एक जॉइंट हमें
फ्री करना है, जूसी करना है। देखते हैं किस तरह से करना है। 1 2 3 4 5 6। इसके बाद हमें शोल्डर के लिए एक्सरसाइज करने हैं। दोनों उंगलियां अपने कंधे पे रख दो और रोटेट करना है। 1 2 3। फिर रिवर्स करना है। 1 2 3। इससे हमारा जो शोल्डर पेन है वो निकल जाएगा। फिर दोनों रिस्ट को एक दूसरे में पकड़ के 1 2 3 4 5 6। जैसे वापस। और बीच बीच में बैक बेंडिंग करना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि हमें बैक एक ना हो। दोनों हाथ कमर पे रख के धीरे धीरे पीछे झुकना है। धीरे धीरे हमें आगे झुकना है। 3 बार करेंगे। आगे झुकते हैं तो सांस को छोड़ना है। जब हम लोग ऊपर आते हैं तो सांस लेना है। फोर 5 और बैठे बैठे आप इसी तरह से पैरों की उंगलियों के, एड़ी के और घुटनों के भी एक्सरसाइज कर सकते हो। थोड़ा सा ट्विस्टिंग भी ऐसे कर लिया तो बहुत ही अच्छा लगेगा। 1 2 3 4 5 6। ऐसे अलग अलग सूक्ष्म व्यायाम है जिससे कि हमारे जॉइंट जूसी रहेंगे। और कंटिन्यूअस बैठने से जो अकड़न आती है, तो हर 1 घंटे के बाद हमको हमेशा उठना चाहिए। अब हम कुछ 5 इम्पोर्टेंट प्राणायाम भी देखेंगे और सब मिलके करेंगे। सबसे पहला प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम। इससे हमारी इम्यून सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है। पेट के जो रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो रिमूव हो जाते हैं और हमारा कंसंट्रेशन, मेमोरी पावर भी बढ़ती है, क्योंकि ब्रेन को स्टिमुलेशन मिलता है। तो हमें इसमें क्या करना है कि फोर्सफुली एक्सेल करना है। बिल्कुल धीरे धीरे करें। देखना है किस तरह से किया जाता है और आप सब लोग भी करें फोर्सफुली एक्सेल। इसके बाद हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। अगर हमें लो फील हो रहा है, हमें इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, कफ कोल्ड के प्रॉब्लम्स हैं, तो कपालभाति और भस्त्रिका का कॉम्बिनेशन किया तो हमारा सिर दर्द, कफ कोल्ड जल्दी ही रिमूव हो जाता है। देखते हैं किस तरह से हमें भस्त्रिका करना है। अंगूठा अंदर लेके मुट्ठी बांध दो। जब हम हथेलियाँ ऊपर लेके जाएंगे तो हमें सांस लेना है, और जब हथेलियाँ नीचे आएंगी तो हमें सांस छोड़ना है। अगर किसी को फ्रोजन शोल्डर की तकलीफ है
या बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्डिलाइटिस की तकलीफ है तो वो हाथ ऊपर बिना किए भी भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं। जिस तरह से इसके बाद हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसे नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहा जाता है। आजकल हार्ट की प्रॉब्लम बहुत लोगों को आ रही है क्योंकि ब्लॉकेजेस बढ़ रहे हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम से हमारी 72,864 जितनी भी हमारे शरीर में नस नाड़ियाँ हैं वो पूरी क्लियर हो जाती है। इसमें हमें क्या करना है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेना है, राइट से छोड़ना है, फिर राइट से लेके लेफ्ट से छोड़ना है। देखते हैं किस तरह से करना है। हम 3 राउंड अनुलोम विलोम प्राणायाम के करेंगे। मैं लेफ्ट हैंड से बता रही हूँ कि मैं सांस ले रही हूँ और नीचे कर रही हूँ, मतलब सांस छोड़ रही हूँ। एक राउंड इस तरह से करते हैं हम लोग। देखना है किस तरह से करना है। इसका एक प्रोपोर्शन होता है, जैसे 1:2, मतलब अगर हम 3 सेकेंड सांस ले रहे हैं तो 6 सेकेंड सांस को छोड़ना है। मतलब मैक्सिमम इम्प्योरिटीज हमको बाहर निकालना है। शुरू में अगर नहीं हो कर पाए तो आप 1:1 भी कर सकते हो। इसके बाद का प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। अब जो एंजाइटी, डिप्रेशन, हेडेक या फोकस ना होने की, कंसंट्रेशन ना होने की जो भी प्रॉब्लम्स है वो ये भ्रामरी प्राणायाम से रिमूव हो जाती हैं। इसमें क्या होता है कि हमें किस तरह से करना है, 3 उंगलियां आँखों पे रखनी है, एक फोrehead पे रखनी है, दोनों अंगूठे से कान बंद करने हैं और जैसे भ्रमर का उच्चारण होता है उस तरह से करना है। हम लोग सब मिलके करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। आंखें खोली नहीं, धीरे से अपनी दोनों हथेलियां एक दूसरे के ऊपर रखिए। हम ओंकार मेडिटेशन करेंगे। लंबी गहरी सांस लो, मुस्कुराते मुस्कुराते खाली कर दो। फिर से एक बार लंबी गहरी सांस लेना है और 3 बार ओंकार का उच्चारण करना है।
आंखें खुलनी नहीं है। Feel relaxed. Concentrate on your breathing. संपूर्ण शरीर शिथिल हो चुका है, मन शांत हो चुका है, शरीर में कहीं भी तनाव नहीं है, कहीं भी खिंचाव नहीं है, मसल टेंशन रिलीज हो चुका है। Do not concentrate on your thoughts. Deep inhale. ऑक्सीजन अपने हर नस नाड़ी तक पहुंच रहा है। And exhale all the impurities of our body. Feel relaxed. Concentrate on your breathing. Movement of our abdominal muscle. Feel peace of mind. Feel relaxed. कुछ पल शांति से बैठना है और आपके ही ब्रीदिंग पे पूरा ध्यान रखना है। दोनों हथेलियां एक दूसरे के ऊपर मलना है। धीरे से अपनी आंखों के ऊपर रखनी है और रिलैक्स फील करना है। बहुत ही अच्छी से एनर्जी हथेलियों में क्रिएट हुई है और वो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अपने हाथों की तरफ देख के धीरे से आंखें खोलनी है। जय गजानन। बहुत ही अच्छा लग रहा होगा आपको मेडिटेशन करके। तो आज आपने जान लिया होगा कि योगा एक ऐसी गोल्डन की है जो हमें हैप्पी और हेल्दी लाइफ प्रदान करती है, फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट और इमोशनली बैलेंस रखती है। अब मैंने तो आपको लेक्चर दे दिया। अगर मैं कहूँ कि शक्कर कैसी मीठी होती है, वो कैसी खानी चाहिए, वो कैसी दिखती है, उससे अच्छा अगर आपके हाथ पे ही थोड़ी सी शक्कर दे दी और आपने खा ली तो उसकी मिठास आपको पता चलेगी। तो योगा भी ऐसे है, बोलने से नहीं होगा, आपको खुद करके देखना है। जब आप करके देखोगे तभी आपको उसके एडवांटेजेस पता चलेंगे। आपको पता है कि कोई भी काम पहले हार्ड होता है, फिर मतलब आप डिसाइड करेंगे, 2 दिन करेंगे, फिर छोड़ देंगे, बीच में वो मैसी होता है, पर उसके रिजल्ट इतने गॉर्जियस होते हैं। पर आपको वो रेगुलरली अपने लाइफस्टाइल में इम्प्लीमेंट करने चाहिए। हमारी इंस्टीट्यूट एक बेहतरीन इंस्टीट्यूट है जहाँ का सराउंडिंग स्पिरिचुअल है। बहुत ही अच्छा वातावरण हमारे कॉलेज में है, इसलिए हमारे कॉलेज ने ही मुझे इंडिया की बेस्ट योगा इंस्टीट्यूट जो है कैवल्य धाम लोनावाला, वहाँ पे टीचर ट्रेनिंग कोर्स के लिए भेजा था। और एक योगा टीचर करके एक इंजीनियरिंग कॉलेज में मुझे रखा था। उस 20 सालों से मैं यहाँ पे योगा टीचिंग कर रही हूँ। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं कि जिनको एंजाइटी, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, वो घर पे आते हैं, उनकी तकलीफ़ें बताते हैं और उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते थे। एक तो एग्जांपल बताती हूँ, एक लड़की को इतना सिर दर्द होता था कि वो एकदम लोटपोट होती थी, पर उसको इंजीनियरिंग कंप्लीट करना ही था। तो जैसे जिस दिन उसका पेपर होता था तो वो मेरे घर पे आती थी, रिलैक्सेशन टेक्निक करती थी, प्राणायाम करती थी और फिर रिलैक्स होके ही पेपर के लिए जाती थी। और पेपर होने के बाद खुशी खुशी मुझे आके मिलती थी कि मैम मेरा पेपर अच्छा हुआ और मेरा सिर दर्द भी चला गया। हम अपने स्टूडेंट को काफ़ी जगह पे कंपटीशन के लिए भी लेके जाते हैं और वो कंपटीशन नेशनल लेवल तक बच्चों ने उसमें प्राइज ये मिले, अवार्ड उनको मिले हैं। ऐसे एक बार मैं अमरावती में गई थी बच्चों को लेके कंपटीशन के लिए और मुझे वहाँ पता चला कि वेटरन का एक ग्रुप होता है, उनके साथ यूँ ही मैंने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और उस कंपटीशन में मैं फर्स्ट आ गई।
तो मेरी एनर्जी और भी बढ़ गई। मैंने भी उनके साथ प्रैक्टिस और जोरों शोरों से शुरू कर दी और 2017 में मैं नेशनल चैम्पियन बन गई और हमारे बच्चे भी नेशनल तक पहुँचे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही एक खुशी की बात है कि हमारा कॉलेज, एक इंजीनियरिंग कॉलेज, योगा के लिए इतना कुछ कर रहा है। तो मैं सभी को बहुत धन्यवाद देती हूँ, हमारे प्रिंसिपल सर, हमारे डायरेक्टर सर, कि उन्होंने इतना एक बेहतरीन मौका मुझे यहाँ दिया है कि मैं अपने सोसाइटी के लिए, अपने कॉलेज के बच्चों के लिए योगा सिखा सकूँ। ये एक मेरी हॉबी है और मैं चाहती हूँ कि ये सब आप भी सीखो, इसका एक्सपीरियंस करो और सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए आप भी योगा करो। थैंक यू वेरी मच। अगर किसी को कोई सवाल है। I request participants to, if you have any queries, they can raise their hands so that you can discuss some of your issues with our today's expert. Or you can also write your any issues in chat so that we will ask with our expert. We are receiving very nice session, and thank you for our today expert. So thank you all of you for joining this session. From the team of organizers, I thanks our today's expert or the yoga teacher for organizing this session. She has given very good some of the pranayamas and asanas so that you can relieve your stress in your working life. I hope in future these asanas will help you to relieve your stress. So with the permission, I say this session is over. Thank you, ma'am. Thanks very much. So in next 5 minutes, we'll start with valedictory, and I'll share